mic is muted, ma'am. Am I audible now? Hello? Yes, ma'am. Okay. So shall we start the session today? Yeah. Okay, so in the last class, I have talked about the fundamentals of interior design. So today we'll basically discuss about how to do the basic layout of an interior plan. So we will take the example of a living room. Okay. So we're going to start talking about how to arrange a living room. So there are certain guidelines that should be followed. Just hold on. I'll share my new screen. Is my screen visible? The guidelines of furniture layout? Yes, ma'am. Yeah. So there are a lot of things that we should always consider before making the basic layout of interior plan. In the last class, I have talked about the various elements that are necessary for doing the like creating the best out of a like simple whatever the site may be, but we can bring out something best of that. But for the furniture layout is the major key of creating any space, because we have to take certain reference, right? So for that, suppose you have an empty room, so in that area we take the area of a living room. So in that point we should always consider the function, how to consider the room that is used and how many people will use it. Okay. See, I will be sharing interior design. Suppose this one. So in this case, function is very important, okay? And a focal point, having a focal point is the important key. The function is that how the room is used and how many people will use it. We have to determine how many people will use a room first. Is my screen visible with the interior design of a living room? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So I am talking about, first we have to determine the functions. Okay, whatever your room space may it be a living room or a bedroom or a dining space, it may be anything. But first point is how to fulfill its functions. Okay, and next is the focal point. Identify the room's focal point. Suppose it may be a fireplace, a television, or may be an existing furniture also. Suppose in this case, if we consider this cabinet to be a focal point, we can make this a focal point or this window a focal point, and we can create the theme around it. We can give the theme that we are imagining, considering this thing as the focal point. So there should be a reference whenever you are designing any of the interior design, there should be a reference. Then next is that we should have the priority, like which largest piece of the priority has to be given when it comes to furniture layout. The largest piece of furniture should be placed first. It is said that the sofa in the living room or might be a bed in the bedroom. In any case, the largest furniture should be placed so that we can think the space around and we can take the measurements and how to play with the existing areas in the room. So once we place the largest piece of furniture, we'll be able to find the remaining space which is available. I can speak in Hindi, right? Hindi is known to all of you. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला कि फंक्शन आपका मैटर करता है, आप कौन सा एरिया के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें कितने लोग आपका स्पेस को यूज करने वाले हैं,
तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना पड़ेगा. हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू यूज द लिविंग रूम. कोई भी मतलब हो सकता है, किसी का स्टाइल अलग हो सकता है, किसी का सोच अलग हो सकता है, तो कितने लोग आपका यूज करेंगे वो आपको जानना जरूरी है. उससे आपको स्पेस का यूजर जो एरिया के बारे में आपको नॉलेज पता चलेगा. नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना चाहिए, आपको रेफरेंस में लेके अपना डिजाइन को इमेजिन करना है. और थर्ड स्टेप ये है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, मतलब सपोज एग्जिस्टिंग नहीं भी है, आप कर रहे हो फर्नीचर लेआउट के लिए, तो आप सोचो कि सबसे बड़ा जो फर्नीचर पीस है उसको हम कैसे रखेंगे और उसी के अराउंड आप बाकी चीजों को अलाइन करो. तो उससे क्या होगा ना, आपका ड्राइंग करने में भी आसानी होगा और आपको आपका बड़ा जो स्पेस है वो उसका यूजर स्पेस भी मिल जाएगा और बाकी का जितना बचा एरिया में क्या करना है उसका भी आपको एक आइडिया आप खुद ब खुद इमेजिन कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज दैट chairs should not be more than 8 feet apart to facilitate conversation. तो कुछ important keys और guidelines, suppose अब जो मैं शेयर कर रही हूँ these are guidelines, okay? तो सिमिलरली कुछ ऐसे लाइक मेजरमेंट के गाइडलाइंस भी है. ये लाइक बोला जाता है कि चेयर के ठीक है शुड नॉट बी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, 8 फीट तक आप मिनिमम रख सकते हो टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन. अगर हम एक राउंड कन्वर्सेशन रखते हैं या एक कोजी स्पेस रखते हैं, सपोज इस केस में जैसे हमारा है इस एरिया में, ये आपका एल शेप एक सोफा है, पूरा एल शेप भी नहीं है, सोफा के भी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है. तो इस केस में मिनिमम एक डिस्टेंस दोनों एरियाज के बीच होना चाहिए. अगर इस चीज को हम बहुत दूर भेजेंगे, सो वी कैन नॉट शो द कनेक्शन बिटवीन पीपल यूजिंग दिस एरिया. किसी को अगर बात करना है तो इतना दूर तक वो जा नहीं पाएगा. सिंपल, यू नो व्हाट टू से, सिंपल ट्रिक्स ऑफ बेसिक कॉमन सेंस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें ज्यादा अप्लाई करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एरिया को ऐसा डिजाइन किया गया है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक सिट आउट स्पेस है. तो यहाँ पे बैठ के कोई बात कर सकता है, वह यहाँ पे बैठ के सपोज यहाँ पे कोई रीड आउट भी कर रहा है, सिटिंग इन दिस सोफा, वन कैन व्यू द टीवी हियर, इस जगह में वो व्यू कर सकते हैं. बट बेसिकली इट्स अ सिट आउट स्पेस. तो वो स्पेस आपको खुद इमेजिन करना है वहाँ पे सोच के. दैट इज अ रादर इम्पोर्टेंट थिंग. Then next is the next point I want to say is about symmetry. तो आपका स्पेस अगर बहुत बड़ा है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका शेप अगर बहुत आड़ा टेढ़ा है तो उस केस में आप कैसा करोगे. तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो आपका फॉर्मल रूम्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है. फॉर्मल रूम्स मीन्स आपको अगर मैं बताऊं, सपोज ये स्पेस भी आप देख लो, सिमेट्री यहाँ पर सिमेट्री है भी और एसिमेट्रिकल भी बैलेंस है इसका जो कंपोजिशन है. तो पार्टली सिमेट्री है, पार्टली एसिमेट्रिक है. यहाँ पे जो इसका डेकोर है, इट्स नॉट सिमेट्री टू द अदर एलिमेंट. इस तरफ उसका खाली एक डेड वॉल रखा गया है. दिस इज एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड स्पेस. ठीक है, तो स्पेस को आप कैसे डिजाइन करोगे, उसको आप एक टर्मिनोलॉजी से उसको जस्टिफाई करोगे. ये स्पेस जैसे बनाया गया है इसमें एसिमेट्रिकल बैलेंस ज्यादा रखा गया है क्योंकि इस एरिया में एल शेप सोफा है. तो अगेन इस साइड में आपका सिट आउट के लिए अलग टाइप का सोफा रखा गया है. बट दोनों ही केस में अगर आप इक्वली इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट अ नॉलेज अबाउट एसिमेट्रिकली बैलेंस. मटेरियल सेम नहीं है बट स्पेस का फील ऑलमोस्ट सेम है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें. और एक मैं आपको स्क्रीन another thing, I'll just show you an example of symmetrical balance. ये केस में देखो, दिस इज एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ए लिविंग रूम. क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपका देखो सेंटर से अगर आप इसको इमेजिन करोगे, इट्स ऑलमोस्ट अलाइन्ड. इसका सिर्फ ये पीछे वाला बैकड्रॉप छोड़ के सिंस इसका सेंटर पॉइंट लोगे तो ये दोनों चीजें भी मिलते हैं और ये दोनों सोफा भी मैच कर रहे हैं. एंड द एंटायर टी टेबल व सेंटर टेबल इज एग्जैक्टली इन द सेंटर.
और स्पेस में फायर स्पेस को आप यहाँ पे रेफरेंस रखो। तो उससे मैं बोल रही थी टू कीप वन थिंग एज अ फोकल पॉइंट, तो यहाँ पर यू कैन कंसिडर दिस फायर स्पेस एज द फोकल पॉइंट। तो उसको सेंटर में रख के बाकी सारे चीजों को example of symmetrical arrangement of a living room. Then again, knowing the traffic flow. Traffic flow में it basically includes कि आपके रूम में सपोज डोर्स है, आपका लिविंग एरिया में डोर है, बात पे आ रहा है, तो वो सब चीजों को आपको अपना सर्कुलेशन में काउंट नहीं करना है। नहीं करना इन द सेंस आपका सर्कुलेशन में सपोज आपका मूवमेंट रहेगा, बट आपका जो स्पेस जहां पर आप लाइक लिविंग रूम को सेटअप करना चाहते हो, लाइक सिट आउट एरिया देना चाहते हो, वहां पर उसका मतलब डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा वो जगह छोड़ना पड़ेगा, उसका एक स्पेस अलग से छोड़ना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक मूवमेंट। Then to use the variation of the sizes of furniture pieces throughout the room, तो variations आपको लाना चाहिए फर्नीचर में, कैसे कैसे फर्नीचर आप यूज करोगे। पहले जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपको पहले एक रफ एस्टिमेट देना पड़ता है, जिसमें आपको फर्नीचर का जो एक टेंटेटिव आपको बताना पड़ेगा क्या क्या फर्नीचर आप यूज करने वाले हो, कैसा टाइप का फर्नीचर आप यूज करने वाले हो। तो एक स्पेस के हिसाब से बहुत ज्यादा भी वैरायटी नहीं देना है, बट वेरिएशंस देना है। डिफरेंस इज दैट कि ज्यादा भी अलग अलग मटेरियल्स आपको नहीं लाना है। सपोज आई एम सेइंग अबाउट सी इन दिस केस, यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, ठीक है। दिस इज सॉरी वैरायटी है, वैरायटी इन द सेंस यहाँ पर देखो टेक्सचर में बहुत वैरायटी है, पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर पीछे का कलर एक डीम्ड आउट है, फिर आपका दो स्टेचूज भी रखा गया है, उसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम द सोफा एवरीथिंग इज अ मिक्स ऑफ टेक्सचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही मैं बोल रही हूँ कि वैरायटी और वेरिएशन डेफिनेटली दोनों ही मैटर करता है आपका स्पेस का रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आपका अगर स्पेस में इफ दिस स्पेस इज रिक्वायर्ड, आपको अगर किसी आर्टिस्ट का घर बनाना हो, किसी एक क्रिएटिव इंसान का घर बनाना हो, तो दे माइट बी लाइकिंग ऑल दोस स्पेसेस। बट एक किसी फॉर्मल क्लाइंट के लिए आप अगर इसको प्रपोज करोगे, देन उसको पसंद नहीं भी आ सकता है कि नहीं। तो यही मैं बोल रही हूँ कि वेरिएशंस आप रखो, बट कीपिंग इन माइंड कि आपको एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए उसको कंपोज करना है। तो यहाँ पर आपका वेराइटी है, नॉट वेरिएशन। यहाँ पे वेराइटी है, वेराइटी टर्म्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ लाइक फिनिशिंग्स। तो ये जो डेकोर है वो डिफरेंट टेक्सचर में फिनिश किया गया, उसका लाइट भी देखो, जो कंपोजिशन रहा वो बहुत ही अलग तरीके का है। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ फर्नीचर पीस थ्रूआउट द रूम स्पेस। तो उसमें आप वेरिएशन फर्नीचर में लाओ। पहला वाला एग्जांपल जो था दैट वाज ऑफ वैरायटी, मतलब क्या क्या आप एलिमेंट यूज कर रहे हो। तो इस केस में आप क्या करोगे ना, फर्नीचर पीस में आप अलग तरीके का वेरिएशन ला सकते हो। मीन्स इट्स बेसिकली अबाउट आप एक ही यूनिफॉर्म रखो, बट यू कैन फिनिश इट मटेरियल्स। लाइक यहाँ पे सिमेट्री है, एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बैलेंस भी है। तो बैलेंस इज देयर, प्रोपोर्शन है, सिमेट्री है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल जहाँ पर आपका वेरिएशंस है। दिस इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक एंड वेरी क्लीन वेरिएशंस है इसमें। पीछे का बैकड्रॉप आपका यूनिक सेम कलर में रखा गया है, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कलर शेड दैट इज मेड इन ब्लू, something about variations in terms of texture of materials. आप कैसा कैसा टेक्सचर से उसको फिनिश करना चाह रहे हो। So this space might be used as a living studio because it has an opening outside, जो आपका एक like प्लांटेशन आपका छोटा मोटा एक वर्किंग स्पेस के तरह भी यूज हो सकता है। So this has been designed according to the mood, knowing the mood and the ideas and thoughts of the client. So यही मैं चीज बोल रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइन में क्या होता है ना, आपको किस इंसान के लिए बनाना है तो उसका आपको
थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन इज नीड। तो उसका स्पेस, उसका मतलब घर में कितने लोग हैं, वो कितना जन उसको यूज करना चाहते हैं, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो सब स्टडी आपको करना पड़ेगा। ये सारे केसेस में आप देख रहे हो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ difference, there's a lot of variation because ये अलग अलग clients के लिए बनाए गए, but the thing is the purpose that they want. Then another important point is the ease of use. तो कैसे हम यूज करेंगे चीजों को, that again comes under the first point, that is function. तो टेबल अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपका साइजेस, आपने टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स तो देखा होगा, साइजेस आपका मैटर करता है, उसको कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है। सोफा आप दे रहे हो तो उसमें कैसा टाइप का सीटिंग आप प्रोवाइड करोगे, लाइक आपका लाइक एल शेप रहेगा या सिंगल सोफा रहेगा या आर्म चेयर्स रहेंगे, साइड चेयर्स रहेंगे। सो एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ यूज। तो आप सिलेक्शन फर्नीचर का करते हो तो आपका हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या ये मटेरियल, ये जो सोफा मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस को सॉल्व करेगा कि नहीं। देन कमिंग नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। So having multifunctional furniture is the best way to have success regardless of the usage of space. So ये भी एक मतलब बिलीफ है कि अगर हम फंक्शनल एरिया में, सपोज आपका जो लिविंग एरिया है उसमें अगर हम मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स रखेंगे तो उससे भी काफी हद तक हम लिविंग रूम को यूजेबल बना सकते हैं। But I think this exists only in terms of huge areas of living room. छोटे स्पेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज छोटे स्पेस में हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी वेरी लेस एंड वेरी मच इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, लेकिन यूज भी उसका सही होना चाहिए। सपोज इस एग्जाम्पल में देखो, ये आपका ये आपका मल्टी फंक्शनल एरिया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके का आपका एरिया है। सपोज का बुक शेल्फ है, टीवी यूनिट भी है, एट द सेम टाइम आपका एक बाहर की तरफ स्विमिंग पूल व्यू भी है। सो ये सब चीजें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज स्पेस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये एक बड़ा स्पेस है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन छोटा स्पेस में क्या करेंगे, इसको हमें जितना हद तक कोस्ट बनाना पड़ेगा और इजी टू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा स्पेस में ज्यादा हम लाइक अपना मतलब फ्लेक्सिबल एलिमेंट को ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें ज्यादा मटेरियल्स का हम अलग वेरिएशंस नहीं ला सकते। लाइक फर्नीचर आप लिमिटेड रखोगे, टेबल का फिनिशिंग्स आप लिमिटेड रखोगे, लेकिन बड़े स्पेस में क्या होगा, यू कैन प्ले अराउंड। Then next important part is about lighting. So properly lighting for the living room means having light come from various sources and various positions. तो आपका रूम में लाइटनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर किसी किए हो, आप इंटीरियर जो किए हो उसको अगर हाईलाइट करना है, सपोज आपका एक पर्टिकुलर रूम में एक पर्टिकुलर एरिया को आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्टर को हाईलाइट करना चाहते हो, वॉलपेपर वॉलपेपर नहीं, आपका अगर किसी पर्टिकुलर वॉल आर्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर स्पेस आपका सीलिंग में भी हो सकता है, सो इन दैट केस यू हैव टू कम अप विद द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लाइट्स। सो आई विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट लाइट्स आल्सो टुडे। तो इसीलिए आपको लाइट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, कितना मतलब इंटेंसिटी का लाइट लगाओगे, कितना लुमिनस होना चाहिए उसका, फिर उसको कौन सा टाइप का लाइट्स के बहुत कैटेगरीज है, आपके इनकैंडेसेंस लाइट्स है, फिर आपका हैलोजन लाइट्स है, तो सबका यूज अलग होता है, तो उसको आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। नेक्स्ट कम टू प्लानिंग। सो ये सब नॉलेज को स्टडी करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट द प्लानिंग। सो हियर यू कैन सी दिस इज ए लेआउट ऑफ ए प्लान। ये लिविंग रूम का एक लेआउट है। So you can see the skeleton of the plan and at the same time the actual vision of the layout that has been executed. So in दोनों cases में क्या है, आपका जो visualization है, suppose आप किसी एक चीज को focal point रख के आप compose कर सकते हो। In this case
सपोज मेरा यहाँ पर एक कैबिनेट है, तो इसको मैं रेफरेंस में रख के अराउंड में अरेंज करती हूँ। तो इसको कैसे होगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उसका सेंटर ड्रॉ करना है। सेंटर ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका अलाइनमेंट, तो अगेन अलाइनमेंट जो रहेगा वो आपका वास्तु के बेसिस पे भी हो सकता है और एल्स आपका फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हो सकता है। इन दिस केस सपोज वी टेक अबाउट फंक्शनैलिटी, सो इस केस पे टीवी यूनिट क्या है, उनका फिक्स नहीं चाहिए, उनको कहीं पे यहाँ पर चाहिए, दैट इज लाइक व्हाट टू से स्टैंडिंग टीवी यूनिट, ये पोर्शन में उनका टीवी यूनिट फिक्स है। सो इन दैट केस उन्होंने एक कॉर्नर अलाइनमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू द रूम स्पेस, क्योंकि ये शेप थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, तो उन्होंने उसको कॉर्नर में बिठाया है। यू कैन प्लेस इट इन अ वर्टिकल वे ऑल्सो, ऐसे भी आप प्लेस कर सकते हो, इट इज अप टू यू हाउ यू मेक द राइट यूज ऑफ इट, बट इन दिस केस दे हैव प्लेड इट इन अ लाइक डायगोनल, मतलब बीच से उनका एक्सिस लेके वहां पे प्लेस किए। Then there are basic things about acceptable measurements for furniture layout in the room. तो कुछ important things है, suppose जो आपका distance between walls और dining area कितना होना चाहिए, वो minimum आपका 36 inches होना चाहिए। Distance between आपका dining table entrance में 48 inches तक होना चाहिए। Vertical space के between और आपका डाइनिंग चेयर और डाइनिंग टेबल के बीच में 7 इंच का गैप रहना चाहिए। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके ड्राइंग में आपको लाना चाहिए। So this is an example लॉन्ग लिविंग रूम। इस केस में क्या है, सोफा को एक साइड में आपका अरेंज किया गया है और बाकी आपका टीवी यूनिट यहाँ पर है और यहाँ पर एक स्टैंडिंग लैंप प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी एक एग्जांपल है, अगर आपका रूम नैरो है और लॉन्ग है, उस केस में आप सीट अरेंजमेंट कैसे करोगे। तो डेफिनेटली यू कैन shift or make it in your choice. Suppose you can place the TV unit somewhere here in a corner way, और आप उसको रोटेट भी करके इस तरह फेस कर सकते हो। बट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस इट्स बेटर कि आपका कुछ पोर्शन, सपोज इस पोर्शन में आप कुछ डेकोर देना चाहते हो, तो फर्नीचर का फर्निशिंग्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसका बैक साइड को आप अच्छे से डेकोर कर सकते हो, इसका फर्निशिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा मटेरियल आप यूज करना चाहते हो। This is suggested arrangement for a square room. तो ये कुछ बेसिक सजेशंस है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने डिजाइन में। So it is in case of a square room, they have suggested it to be in a very aligned way rather than in the same axis. उसको align करके वो place किए। So this is also something that you can use. ऐसे भी आप अरेंज कर सकते हो। ये जो ऐसा वो लोग बेसिकली इसलिए देते हैं ताकि दे शो अ लॉट ऑफ वाइड स्पेसेस अराउंड इट। यहाँ पर आप देखो काफी उनको हर साइड से जगह मिल रही है। सपोज अगर आप उसको एक ही एक्सिस में रखोगे तो आपका ऐसा दिखेगा कि रूम एक ही साइड में भरा हुआ है और एक जगह खाली है, राइट। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सजेस्टेड उसको कॉर्नर प्लेस करो, बट इट्स अप टू यू हाउ यू कैन टर्न इट अप। उसको आप रोटेट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ हाउ टू अरेंज the furniture layout in terms of square rooms. See, that was I was talking about perpendicular position भी कर सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो। इस केस में क्या हुआ ना, आपका दोनों साइड में सोफा पूरा आपका व्यू, so there is less space for workflow. So in this case आप क्या कर सकते थे, इसको अगर आप हल्का सा एक ही डायरेक्शन में ले आते, सपोज इसको इधर शिफ्ट करके यहाँ पे अगर इस सोफा को भी ले आते, टीवी को कहीं यहाँ पे अरेंज कर देते, तो तब भी आपका रूम में बीच में एक सर्कुलेशन स्पेस बचता। लेकिन इस लेआउट से क्या हुआ ना, आपका रूम का सर्कुलेशन कुछ हद तक कंजेस्टेड हो गया। So these are some examples. तो यू कैन डेफिनेटली वर्क इट आउट। तो मेथड्स आपके वही है कि एक चीज को आप सेंटर में रखो, एक चीज को फोकल पॉइंट रखो। सपोज यहाँ पर टीवी को फोकल पॉइंट रखो, उसको सोच के आप इमेजिन करो बाकी का फर्नीचर ले आओ।
आप एक सपोज इस केस में आप सेंटर टेबल को सोच के रखो और उसके अराउंड आप फर्नीचर लेआउट करो. सो वन पॉइंट हैज टू बी द फोकल पॉइंट. So again, I will show you AutoCAD drawing also, but first you should know about some furniture key arrangement. तो फर्नीचर अरेंजमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चन है सबको दिमाग में सोचना चाहिए. सब किसी एक प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो आपको मैंने अभी बताया कि आपको कैसे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, बट आपको ये भी सोचना है कि थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए और कैसा एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे. Like list 4 activities that commonly take place in the living areas. तो आपको आपके ड्राइंग में ये एरियाज को इमेजिन करना है. सपोज कन्वर्सेशन हो गया, आपका रिक्रिएशन एरिया है, डाइनिंग एरिया है, एंटरटेनमेंट एरिया है. इनमें से आपको 4 सपोज आप सिलेक्ट करो. फिर व्हाट इज द आइडियल डायमीटर फॉर द प्राइमरी कन्वर्सेशन एरिया. तो जिस एरिया को जो मैंने अभी इतना एग्जाम्पल्स आपको दिखाया, किसी डिजाइन में देखना सेंटर में सारा फर्नीचर्स को रखा गया है. तो वो क्यों रखा गया है? क्योंकि वो आपका प्राइमरी कन्वर्सेशन एरिया है लिविंग रूम में. तो वो आपका 8 to 12 फीट के अंदर आप उसको कंपोज करो. देन व्हाट माइट बी प्लेस्ड इन ए सेकेंडरी फर्नीचर ग्रुपिंग. तो आपका एक एग्जांपल मैंने जो आपको दिखाया था इसमें, जस्ट होल्ड ऑन. या तो इसमें भी देखो, आपका ग्रुपिंग देखो, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. प्राइमरी ग्रुपिंग, सेकेंडरी ग्रुपिंग. तो ये आपका पूरा जो लिविंग रूम है इसको अलग अलग स्पेस में डिवाइड किया गया है, राइट. तो ये आपका प्राइमरी ग्रुपिंग हो गया सेगमेंट का. सेकेंडरी ग्रुपिंग, people with more user purpose will sit here definitely, and the people with less user purpose or single purpose to read and explore the study area can explore it sitting here. समझ में आ रहा है ना? हेलो. हाँ, yeah. So that is what I was talking about. What is the minimum dining area size for 4 people? वो आपका 80 square feet तक हो सकता है. Then how much space would be required to sit 4 to 8 people and a place like आपका एक एरिया में 7-8 लोगों को एक साथ बैठने के लिए कितना एरिया आपको एक्सप्लोर करना चाहिए? That might be talking up to 1 square feet. Then these 4 activities get placed in a living room. तो पहला वाला अभी तो हम लिविंग तो इतना तक कि आप कंफाइंड रहो. ये पीडीएफ में शेयर करूंगी. सर्टेन क्वेश्चनर्स जो आपके थॉट प्रोसेस में रहने चाहिए सो दैट आप आपको इमेजिन करने ऐसे ही लेम होके बना सकते. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूम का कितने लोग आपके रूम को यूज करने वाले हैं. लिविंग रूम आप पकड़ो, सबसे एक पूरा स्पेस से स्टार्ट करते हैं. तो आपके लिविंग में कितने लोग उसको यूज करने वाले हैं, सबसे पहले आपको वो जानना है. फिर आपको जानना है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगे. ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होंगे. उस लिविंग रूम में आप टीवी देख सकते हैं, लोग बैठ के बात कर सकते हैं. किसी को थोड़ा अगर वो लाइक बुक्स का शौकीन है तो दे ही माइट बी हैविंग अ स्मॉल गैलरी ऑफ बुक्स. सो ऐसे स्पेसेस को आपको इमेजिन करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द लाइक यूजर यूजिंग द स्पेस, हाउ इज द यूजर यूजिंग द स्पेस. उसके ऊपर में आपको ये इसको इमेजिन करना है. इमेजिन करके आप फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे सिंपल फ्री हैंड पर्सपेक्टिव आप इमेजिन करते हो, जिससे आप स्केच आउट करते हो कि ऐसा होना से ऐसा हो. देन आफ्टर दैट यू ड्रॉप इनटू योर तो प्लान में आपका शेप आपके पास है, रूम का जो शेप है वो आपके पास है. तो उस शेप का लो, उस शेप में आप पहले इमेजिन करो आपका एक फोकल पॉइंट. सपोज
हेलो, हेलो हेलो मैम. क्या मैं ऑडिबल? Yes ma'am. हाँ हाँ, तो सिटिंग लेआउट अगर मैंने दे दिया, तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अ सेंटर टेबल, तो उसको आप प्लेस करोगे, तो वो आपका सिटिंग एरिया बन गया, आपका लाइब्रेरी एरिया बन गया। और उसके बाद आप इमेजिन करो, आपका सिटिंग है, तो somebody from other room will definitely approach your like area। तो Ma'am, वो जो the approach screen room is होगा। not visible, ma'am. Hello. Okay, okay, just a moment। Visible now? Hello? No ma'am, actually it's showing. Yeah, No, ma'am. अभी आ रहा है ना? क्या है? No ma'am. क्या दिख- Yeah, is it visible now? No, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes ma'am. Yes. तो वही मैं बोल रही होती कि आपको एक फोकल पॉइंट दो और उसके अलावा चीजों को इमेजिन करो। सो दैट इज द की ऑफ कंपोजिंग ए लेआउट। नाउ आई विल लाइक टू शेयर ऑटोकैड लेआउट। ठीक है, इसमें स्क्रीन विजिबल ना? ऑटोकैड का प्लान दिख रहा है ना? No ma'am. No ma'am, it's showing the PDF file. Yeah, it's visible now. No ma'am. या अभी दिख रहा है ना? हेलो, No ma'am, it's showing that you are starting the share screen but not visible. आई थिंक इट्स कमिंग राइट नाउ। अभी आ रहा है शायद से। स्क्रीन दिख रहा है ऑटोकैड लेआउट? No, ma'am. No ma'am. या अभी आ रहा है?
Is it coming now? Yes, ma'am. I think the internet is a bit slow. It's taking time actually. Maybe like that. Yeah, is my screen showing any PDF or the? Yeah, my screen is showing the AutoCAD file. Is it visible now? No, ma'am. No, ma'am. I will disconnect one, then connect again. Hello. 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 Hello, ma'am. Yeah. Is my screen visible? AutoCAD layout? No, ma'am. No, ma'am. Yeah, okay, am I audible to everyone? Hello. 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 Yeah, am I audible to? No, ma'am. This is not visible. No, it's not visible. Am I audible? Ma'am, actually, I Hello. think your internet is down. Actually, your voice is not properly audible. That is the problem. The net is slow. Okay, so split, what I was saying is that अगर आपके पास existing अंदर किसी छोटे रूम का आप लेआउट हो, ठीक है, तो छोटे रूम का सपोज आप काम you take living room 20 feet by 20 by 25 आप एक फोकल पॉइंट रेट का एक लेआउट कंपोज Ma'am, your voice is cracking. It's not audible properly. just hold on for a second.
हेलो हेलो हेलो। या या, अभी ठीक है, बस तो ठीक है अभी। हेलो हेलो। हेलो। या अभी वॉइस वॉइस ठीक से सुनाई दे रहा है? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। एंड द स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो नो मैम। मैम। अच्छा ठीक है, अगर आपको वॉइस सुनाई दे रहा है तो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट एक लेआउट ड्राफ्ट करो ऑटोकैड में जो आपका 25 फीट बाय 12 फीट वाइड है, ठीक है? यू जस्ट नोट इट डाउन, यू ड्राफ्ट ए लेआउट ऑफ 25 फीट बाय 12 फीट। उसके अंदर आप एक फोकल पॉइंट लो, दैट माइट बी योर टीवी यूनिट और माइट बी एन एग्जिस्टिंग सोफा, कुछ भी आप इमेजिन करो, उसको फोकल पॉइंट लेके आप एक लेआउट कंपोज करो। दैट आई थिंक शुड बी बेटर फॉर यू, टू बी एन गुड एक्सरसाइज, सो दैट आपको उसमें उसी के अंदर आप लाइटनिंग भी सीख जाओगे, आप मटेरियल का Ma'am, the फिनिश भी सीख जाओगे। AutoCAD screen वन is visible now. ओके, या इट्स विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, ma'am. या सो ये जो लेआउट है इसमें बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट आपको दिखाया गया है, तो विल कम स्टेप बाय स्टेप। तो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप एक सिंपल लेआउट आप करो जो आपका 25 फीट बाय 12 फीट वाइड हो, उसके अंदर आप एक फर्नीचर लेआउट प्लेस करो, ठीक है? दिस इज अ टास्क फॉर योर नेक्स्ट क्लास टू ऑल ऑफ यू, सो दैट it becomes interesting and you will learn the entire interior basics in that layout only, ठीक है? तो उसके अंदर आप एक फर्नीचर लेआउट आप प्लेस करो। यू कैन शो ए टीवी यूनिट ऑल्सो, जिसको आप फर्दर डिटेल आउट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया है। उस हिसाब से उसी में आप फ्लोरिंग भी एक्सप्लोर करो, फ्लोरिंग आप कैसा फ्लोरिंग उसमें दोगे, वॉल फिनिश कैसा दोगे, सीलिंग का डिजाइन कैसा होगा एंड ऑल दैट। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल लेआउट में ये आपका बेडरूम के ऊपर जो सीलिंग है उसका डिटेलिंग्स है, तो उसमें लाइट फिक्सचर्स कैसे दिए गए हैं और उनका कनेक्टिविटी कैसे किया गया है, सब यहाँ पे इस टाइम में दिखाया गया है, ठीक है? तो दिस इज अ चिल्ड्रंस बेडरूम, तो उसके हिसाब से हमें लाइट्स चूज करने हैं कि हमें कैसे लाइट्स प्रोवाइड करने होंगे टू अंडरस्टैंड द मूड एंड डिटेल ऑफ द चाइल्ड। तो उसके हिसाब से हमें कितना लाइट देना है एंड कहाँ कहाँ पे फैन प्लेस करना है, वो सब प्लेसमेंट हमें जानने को मिलेगा वंस डिसाइड कि हमें कैसा टाइप का उसका फिनिशिंग प्रपोज करना है। तो वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा कि आप उसका फर्नीचर लेआउट करो। सपोज इस केस में यहाँ पे उसका बेड, यहाँ पे उसका बेड है, तो उसके एग्जैक्ट ऊपर में ये पोजीशन में आपका एक लाइक फैन दिया गया है, एक point दिया है, and then there is the specification of switch boards। तो ये सब डिटेलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कितना हाइट में आपका स्विचेस को प्लेस कर रहे हो, बिकॉज आपका स्विचेस को आप हिडन भी रखना चाहो तो आप हिडन रख सकते हो, एक्सपोज करना चाहो तो भी आप रख सकते हो। दिस इज अ बेसिक डिटेलिंग आपको कैसे प्रोवाइड करना है, बट टू रीच आउट टू दिस लेवल यू हैव टू फर्स्ट प्लान आउट योर फर्नीचर। फर्नीचर लेआउट का मैं एक एग्जांपल आपको शेयर कर रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। Yeah, is my screen visible?
हेलो, No, ma'am. स्क्रीन आ है ना अभी? Does the screen come in the layout of a dining room? Hello, Devashi, visible the AutoCAD screen? No, ma'am. अभी दिखाई दे रहा है? No, ma'am. I'm very sorry, guys. I don't know what's happening. फर्नीचर टेम्पलेट जो सेकंड या थर्ड क्लास में दिया गया था, हेलो हेलो, Hello, ma'am. या Ma'am, डू यू हैव द फर्नीचर? ma'am, your voice is breaking. Yeah. Is it audible? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Not audible. Screen. So this is फर्नीचर टेम्पलेट जो मैंने दिया था आपको, फर्नीचर टेम्पलेट्स का एक हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. yeah, is my AutoCAD screen visible now? Yes. Yes, ma'am. हाँ, see, this is the layout of a dining area, ठीक है? तो you must be having that furniture template जो आपको फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में दिया गया था. Yes, ma'am. हाँ, तो you can use all those furnitures and place it in your room. जो मैंने आपको बोला है, जो आपको लिविंग रूम कंपोज करना है, उसमें आप फर्नीचर को प्लेस करो. जस्ट टेक इट एज अ फ्री एक्सरसाइज सो दैट यू कैन लर्न. ओके, फर्नीचर को आप प्लेस करो. सपोज नाइस मैंने से उठाया है, एंड आई ऑल्सो हैव अ ग्लास फेशिया इन दिस सराउंडिंग्स. ये आपका कॉलम स्ट्रक्चर बीच पे है, साइड में, दोनों साइड में, और यहाँ पे मेरा एक स्लाइडिंग डोर है. इस तरफ भी ग्लास है, इस तरफ भी ग्लास है. तो जैसा कि मैंने आपको जो कुछ टाइम पहले पीडीएफ में दिखाया था इंटीरियर का, जिसमें आपका बुक शेल्फ भी है,
स्टडी एरिया है, सिटिंग एरिया है, और आपका बाहर की तरफ पूल को व्यू भी है, स्विमिंग पूल को, ठीक है, रिमेम्बर ना? हेलो, Yes, ma'am. हाँ, तो उसको आप इमेजिन करो एंड विद दैट यू जस्ट प्लेस योर फर्नीचर्स। तो उसके साथ साथ आपको क्या है, इन दिस ड्राइंग्स यू कैन सी हर चीज का एक डिटेलिंग किया गया है। तो सपोज किचन का जो एंट्री है उसके बगल में ये एक स्टोरेज यूनिट जो बनाया गया है उसका डिटेलिंग है, जिसके बीच में यहाँ पे एक मिरर दिया गया है। So all this design will come later once you compose your final your layout. तो layout compose करने के बाद you have to imagine your 4 walls. तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक wall है, ये एक मतलब elevation है, ये एक elevation है। तो I have 4 sides of the elevation. तो उसका आप view करोगे, आप उसमें क्या क्या एलिमेंट डालना चाहते हो। तो दिस इज माय डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो उसके साथ मेरा क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पर मैं कुछ स्पेशल एक्सेसरीज या कुछ टाइप का आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे सजा के रख सकती हूँ। Imagining my chandelier in this area. Okay. So again, the door could be detailed. तो डोर में आप अलग टाइप का डिटेलिंग दे सकते हो, डोर को भी डिजाइन कर सकते हो। फाइन। देन स्पेस यहाँ पर आप क्या है, जो आपका डिस्प्ले यूनिट है उसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर मैं चीजों को सजा के रख सकती हूँ। हेलो Yes, हेलो, ma'am. Yes, ma'am. yeah. So this is a basic example। जो मेरा स्लाइडिंग एरिया है तो उस स्पेस में तो मेरा स्लाइडिंग डोर आ गया, एंड उसके बगल में मेरा एक यूटिलिटी डोर। तो डोर को भी आप जितना हो सके डिटेल आउट कर सकते हो। देन व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्ले यूनिट यू वांट टू प्रोवाइड, उस पर आप अपने डिजाइन के हिसाब से उसको कंपोज कर सकते हो। सो just take it as a free exercise. I am saying it to all of you. You just draft a small layout of a living room that is of size 25 feet by 12 feet. तो उसके अंदर you just place your sofa। कैसा टाइप का आप सोफा देना चाहते हो, you play with different sofas, L shape देना चाहते हो या सिंगल सोफा देना चाहते हो, या कैसा टाइप का आप सिट आउट प्रोवाइड करना चाहते हो, और कितना एक्टिविटी उसमें डालना चाहते हो। टीवी देखने का एक स्पेस डालो, स्टडी का एक स्पेस डालो, बाय साथ सेंटर यूनिट स्पेस जहाँ पर आप बैठ के बात कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। तो वैसा एक स्पेस आप डालो, इमेजिन करो, और उस एरिया का 4 साइड का एलिवेशंस आप ड्रॉ करो। देन यू विल डू इट द सेम थिंग इन SketchUp। देन यू विल कम अप विद द फाइनल व्यू ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आप उसमें डालना चाहते हो, क्या टेक्सचर्स आप डालना चाहते हो। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, इफ आई से इट इन अ थियोरेटिकल वे, आप उसको मतलब अपने डिजाइन में डाल नहीं पाओगे। मैं अगर बस आपको बोलती रहूंगी कि ऐसा होगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, आप उसको नहीं कर पाओगे। So the best way to learn is to start doing the things. So in the next class, I'm expecting all of you to come up with a small layout, and in that layout we will do the lightning part, उसको false ceiling करेंगे, उसका wall का textures decide करेंगे, door finishes and everything we will do. So are you guys fine with that? Hello? Okay, ma'am. Yeah, and just telling it to all of you. So I need a common voice of all of you. So are you guys fine doing this layout? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, please do that, because that will make you learn, and I can guarantee you that उस process से आप जल्दी सीखोगे, rather than me saying all these theoretical things. Fine. तो आपने suppose last exercise में आपने एक building का model भी बनाया होगा, तो उसी model के अंदर आप एक काम कर सकते हो। उसी मॉडल के अंदर उसका तो ऑटोकैड प्लान होगा आपके पास, तो उसी मॉडल का एक छोटा सा पार्ट को आप लो, उसमें आप फर्नीचर डालो, उसी के अंदर हम उसका फ्लोरिंग करेंगे, उसका वॉल का कैसा फिनिश होगा वो देखेंगे, फॉल सीलिंग करेंगे, कैसा लाइट्स देना है वो सब उसमें डालेंगे। तो फिर क्या होगा ना, आपको अलग अलग टाइप का लाइट्स के बारे में आपको नॉलेज पता चलेगा, कैसा आपका सोफा किस किस स्टाइल में होता है वो पता चलेगा, आपके वॉल फिनिशेस किस टाइप के हो सकते हैं, व आपका टीवी यूनिट में आप विनियर, लैमिनेट, आजकल तो कितने सारे मटेरियल्स है, कितना कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। So it is the best way to learn, the more you explore. So you do that, that will be helpful to all of you.
So that will be the best thing to do right now. So apart from that, I will share you the PDF जिसपे कुछ specifications mentioned है regarding आपका sofa sizes. But the best thing is to look up into the time saver standards जो आपको share हो चुका है I think. तो टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स आप अच्छे से स्टडी करोगे, उसमें से भी आप क्या कर सकते हो ना, जितना है आपका कैसा चाहिए पूरा टेक्सचर आप डिसाइड कर सकते हो कैसा टाइप का आप बनाना चाहते हो. तो एक सिंगल रूम एरिया को लो, उसमें चीजों को इमेजिन करो. ये जो आपका यहाँ पे स्क्रीन में एक पीडीएफ दिख रहा होगा कि कैसा डिटेलिंग किया गया है. ये स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हेलो. Yes, ma'am. हाँ, तो ये पीडीएफ स्क्रीन में आप देखो, बहुत सिंपल तरीके से ये डिजाइन किया गया है. इसमें कुछ ज्यादा उन्होंने प्रोजेक्शंस नहीं निकाले, वेरी मिनिमल. तो इसमें क्या है, क्या क्या मटेरियल्स है. इसमें फ्लोरिंग उन्होंने देखो वुडन फ्लोरिंग दिया है, ठीक है. वुडन फ्लोरिंग का टेक्सचर वुडन फ्लोरिंग का है. देन एक वॉल जिसमें डेड वॉल है उसमें व्हाइट पेंट किया गया है, बट बिलो दैट देयर इज अ फायर स्पेस. एंड अगेन द टीवी यूनिट जो है वो एक ही छोटा यूनिट नहीं है, ये पूरा उसका बैकड्रॉप को ही उन्होंने टीवी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. तो उसमें भी उन्होंने एक अलग तरीके का डिटेलिंग दिया है, जो देख सकते हो कि ब्रेक, इट लुक्स लाइक ए ब्रोकन मिरर, एक कांच का टुकड़ा जो आपका टूटा हुआ है. दिस आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो ये आपका कब आएंगे ना, जब आप एक बेसिक लेआउट आप बना लोगे, उसको एक बार नहीं 2 बार आप करना जाओ तो आपका खुद ब खुद ऐसे आइडियाज आपको आ जाएंगे कि मुझे बैकड्रॉप में कैसा वॉल चाहिए, मुझे उसको कैसा बनाना है. तो इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दिस, जो आपका टीवी यूनिट यहाँ पे जो नीचे है, तो ये मुझे बताओ इसको अगर नहीं देने से क्या होता. इफ वी हैवंट, मतलब उसको अगर नहीं देते तो क्या हमारा मतलब बुरा होता है इसके लिए. हेलो. Ma'am, can you repeat the question? Yeah, I'm asking ki if in this TV unit that has been also expanded into a backdrop, if we haven't given this part of storage of the TV unit, तो क्या खराब होता है अगर हम ये वाला स्टोरेज को नहीं देते तो. हम बहुत मोनोटोनस हो जाता एंड कुछ वो मतलब इट वोंट हैव लाइक वैरायटी नहीं होता, टेक्सचर प्लेन नहीं. दैट इज फाइन. आई जस्ट लाइक टू करेक्ट यू. अभी जो इस क्लास में मैंने बताया था जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में सबसे पहला है फंक्शन. फंक्शन सबसे पहला फंक्शन. तो एक टीवी यूनिट का फंक्शन क्या होना चाहिए. अगर आप टीवी रखते हो तो टीवी का रिमोट रखने का एक जगह चाहिए, टीवी का सेट टॉप बॉक्स रखने का एक जगह चाहिए, है कि नहीं. यस मैम. हाँ, तो दैट इज मे आई नो योर गुड नेम, आपका नाम. मैम प्रतिका. हाँ, सो सी जो आपने सोचा, सपोज आप बोल रहे हो कि टेक्सचर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये सब बहुत बाद में आते हैं. दैट इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. इसीलिए बोल रही हूँ कि गाइडलाइंस एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उसका फॉलो करो. फंक्शन सबसे पहले आता है, फंक्शन. देन कम्स योर प्रायोरिटी, मतलब यूजर एक्टिविटी कैसा होगा. तो इस पे आपको आंसर मिल गया कि आपका फंक्शन आपने फॉलो नहीं किया. अगर मैं ये नहीं देती तो मेरा फंक्शन नहीं होता इसमें, क्योंकि टीवी के साथ साथ क्या है, मुझे उसको सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए, रिमोट रखने के लिए एक स्पेस चाहिए. मे नॉट बी दिस मच बिग, बट मैं उसको छोटा भी कर सकती थी. बट मेकिंग दिस बिग इज अ पार्ट ऑफ माई डिजाइन. वहां पर आपका जो आंसर जो आप बोल रहे हो ना कि टेक्सचर है, वैरायटी है, वो आपका मैच करेगा, राइट. क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके बैकड्रॉप के हिसाब से मैचिंग आपका टेक्सचर नहीं है, उसमें वैरायटी नहीं है. तो वो आप जस्टिफाई यहाँ पे कर सकते हो कि मैंने फंक्शन तो फुलफिल कर लिया, उसका डिजाइन मुझे लंबा क्यों करना है. उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर आपने जो दिया वो हो सकता है. लेकिन फर्स्ट केस पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं इस यूनिट को नहीं देती तो मेरा क्या खराब होता, तो उसका आंसर यही है कि मेरा फंक्शन जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि टीवी के साथ साथ मुझे उसका
एक्सेसरीज रखने के लिए भी एक जगह चाहिए, स्टोरेज चाहिए, फाइन। तो उसको छोड़ दो। देन नेक्स्ट इज लाइक दिस सोफा, इसका टेक्सचर देखो, दिस इज व्हाइट, तो उसको व्हाइट क्यों रखा? कैन एनीबॉडी से मी, मतलब एक थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, क्यों उसका व्हाइट है? हेलो हेलो Yes, ma'am, I can't hear you. I'm having some net connectivity problem. The last part, what you said, I got disconnected. yeah. I am asking you, in this picture, you can see the sofa and its finish is in white. Okay. So I am asking why this finish could have been made white. मतलब उसका एक रीजन, एक थॉट प्रोसेस आपके नजरिए से क्या है, क्यों उसको व्हाइट दिया गया है? मैम ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे एंड मे बी द रूल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ थ्री, मतलब जैसे इन्होंने कलर कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे ब्राउन वाइट एंड ब्लैक को 3 मेन कलर्स रखे ताकि वो बैलेंस बना रहे और एक हार्मनी रहे पूरा पिक्चर में। राइट राइट। तो ये आपने किस नॉलेज के बेसिस पे किया? बिकॉज यू कुड सेंस द स्पेस, यू कुड अंडरस्टैंड द व्हाट टू से, अंडरस्टैंड द, आप स्पेस को आप समझ चुके हो, इसलिए आप वैसा बोल रहे हो। ये बहुत कॉमन चीज, बट जिस लैंग्वेज में बोलोगे वो आपका क्लास डिसाइड करेगा। जैसे आप बोले, वो अभी एक नॉर्मल लोग को बोलते तो वो क्या बोलता है, हाँ उसका मन किया तो उसने ऐसा लगा दिया, ऐसे भी आंसर्स होते हैं कि नहीं? बट एज ए डिजाइनर आपको जैसा आपने आंसर दिया वैसे ही आंसर करना है, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ बैलेंस, यू वांट टू क्रिएट अ हार्मोनी इन द स्पेस। सो इसीलिए आपने ये व्हाइट यहाँ पे रखा है, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग दिस वॉल ऑल्सो जो आपका व्हाइट में है। एट द सेम टाइम का जो आपका यहाँ पे फिनिश है उसको भी वो मैच कर रहा है। देयर इज अ रिलेशन इन द स्पेस, तो ये स्पेस डिस्कनेक्टेड नहीं होता। मैं यहाँ पे रेड दे रही थी सपोज, तो उससे क्या होता है, मतलब ये तो पूरा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। वो भी एक स्टाइल होगा, बट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रेड और यहाँ पे ये ब्राउन मैच नहीं करता है कि नहीं करता। तो वो चीज आपको डेवलप करना है। तो अभी जो एक्सरसाइज दे रही हूँ, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग ऐसे ऐसे आइडियाज निकल के मतलब लाओगे, दैट विल बी लर्निंग थिंग फॉर यू। एट द सेम टाइम आपको वो जो डिफरेंस है वो पता चले। कोई कोई जो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे रेड भी डाल सकता है, यू नेवर नो, बट दे विल जस्टिफाई दैट। So no design is good or bad. Everything decides on how you justify your design or make it sell or make it usable. वो आपका कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। So ये भी और एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो एज ए डिजाइनर आपको जानना है। फिर यहाँ पर देखो, देयर इज अ कर्टेन देयर, एंड अगेन यहाँ पर कर्टेन अगर मैं व्हाइट भी देती तब भी मेरा कुछ बुरा नहीं होता। उससे क्या होता, मेरा सिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट होता, राइट? अगर मैं ये कर्टेन व्हाइट कर देती तो यहाँ पे मेरा सिमेट्री क्रिएट नहीं होता ना। सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर फिनिश, सॉरी इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू से कलर फिनिश। तो यहाँ पे मेरा व्हाइट है, यहाँ पे भी मेरा व्हाइट होता तो वो सिमेट्री कहलाता। राइट नाउ द स्पेस इज एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड, फाइन। एंड यहाँ पर आपने 3 जो लाइट्स दिए हैं, सीलिंग लाइट्स, यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पे उसका एक फोकस पड़ेगा, इस पोर्शन में एक फोकस पड़ेगा और इस पोर्शन में एक फोकस पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसा नहीं देना, क्योंकि ये स्पेस का भी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है दैट आई विल शेयर वंस यू मेक आउट द लेआउट प्लान्स। तो उस प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भी एक मिनिमम आपको गैप कैसे रखना है, फाइन। इसका हमें प्लेसमेंट कैसा करना है, इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसा करना है, वो सब हम सीखेंगे। But for that you have to draft your initial layout. So I am hopeful कि all of you will do that and we will come up with some unique ideas in the next session. तो उसके साथ साथ आप ऐसे डिजाइन्स भी आप अपने डिजाइन में निकालो. We will make out this kind of 3D also.
Are you guys ready for the session? You will be learning a lot with all these things. आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा. So you can come up with some unique interiors that has been made by you. ऐसा डिटेलिंग आप खुद भी कर सकते हो. हेलो. ओके मैम. तो आप सब करो. तो उससे हम क्या करेंगे ना नेक्स्ट सेशन में उसका पूरा फ्लोरिंग स्टेप बाय जाएंगे. फ्लोरिंग, वॉल फिनिशेस, सीलिंग सब करेंगे. फाइन. ओके मैम. Okay. चलो. And it's already 10, I think, 10, 9. So I will be signing off. Yeah, they were anything. Hello. 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 So, Yeah, Devarshi, I'm just signing off. I'm saying that they will draft the layout from the existing plan. You can take the 3D model. Hello. 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 hello, ma'am. Yeah, Devarshi. I think Hello. Ma'am, actually, I think Baya is better. He is also discovered. I think this network issue. Pardon to all of you. Sorry for the interruption. Don't mind. I'm trying my best, but something is getting wrong. I don't know what's happening with the internet today. But that is what I'm saying. So come up with all this kind of interior decor. So these are recessed lighting. You are seeing in the picture, right? This is the recessed lighting in the wall. Okay. So this is a light which is done using a different kind of LED lights on this area. So we'll be exploring all these details, but you have to first draft your initial layout. Fine. So that we can come up with these ideas. Okay, ma'am. Okay, guys. So I'm signing off and see you in the next session. So be positive and do your work. I will just speak to you in the best way. Okay. Thank you. thank you, ma'am.